Ayushman India Hackathon 2024. I am Nitish Gupta from Team Data Dominators of MIT University, Chhattisgarh, presenting our innovation solution to digitalize the streamlined scholarship disbursement process for the Prime Minister Special Scholarship Scheme or PMS. Our challenge titled Development of Paperless Scholarship Disbursement System for PMSSS focus on solving a major issue, the cumbersome, slow and error-prone process of scholarship disbursements that still rely on excessive paperwork. We are developing a fully digital solution that integrates Aadhaar and DigiLocker to automatically verify documents and ensure seamless scholarship disbursement. For application to payment, our system automates document validation and significantly reduces delay. Here, how it works. Students enter their Aadhaar detail, numbers, retrieving their personal detail, the upload document through DigiLocker, where they are verified with government database, and verified database are automatically routed to SEC Bureau from reviewing and forwarded to the Finance Bureau for disbursement. Students receive real-time notification and can be track their scholarship status throughout. Technical approach. Technically, we are building this system using HTML, CSS, and JavaScript for the front end with Flask powering the API development. For database, we use both MongoDB and MySQL integration with Aadhaar authentication, ensuring accuracy, and the DigiLocker API retrieving and verifying student document, email, and OTP verification are handled through an SMTP server. Visibility. We are ensure this system feasible by leveraging proven technologies like Aadhaar and DigiLocker. However, we recognize challenges such as potential delay in the state database communication. To overcome this, we have built this manual review fallback mechanism and automate reminder and notification to keep process moving smoothly. Impacts and benefits. The impacts. Student will experience a hassle free application process, while institute benefits for reduced paperwork and quicker scholarship disbursement. Our system will cut the time to process scholarship by up to 80%, meaning students get their fund faster, which helps them focus on their document. My name is Vikrant Chauhan, team leader of Data Dominators. Let's see how our digital scholarship system works. This is our homepage of our website. स्टूडेंट सेक्शन है, सेक ब्यूरो है, फाइनेंस है, स्कीम एंड एलिजिबिलिटी है। हेडर में एप्लीकेशन स्टेटस है, नोटिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, यूजर मैनुअल, फीडबैक एंड ग्रेवियंस, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट अस। हम देखेंगे स्टूडेंट सेक्शन का। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वेरीफाई आधार नंबर, ओटीपी, डिजिलॉकर पिन, here we are allowing documents that we need in form fill up. Allow पर्सनल डिटेल्स जो कि आधार वेरिफिकेशन के थ्रू ऑटोमेटिक फिल हुए हैं, सबमिट, एड्रेस डिटेल, सबमिट, एकेडमिक डिटेल्स फिल करेंगे जो कि
रोल नंबर के थ्रू में डिजी लॉकर से डायरेक्ट फैच होगा, जो कि 10th-12th की मार्कशीट या फिर डिप्लोमा की मार्कशीट रहेगी। फिर सबमिट करेंगे अपन। मार्कशीट फैच होने के बाद में ऑटोमेटिक सबमिट भी होगा और मैनुअल फिल भी होगा डॉक्यूमेंट्स का, जो परसेंटेज है, रोल नंबर है, बोर्ड है एंड नेम, अदर डिटेल्स। बैंक डिटेल्स हम फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर कास्ट, डोमिसाइल एंड यूजर डिसेबिलिटी डिटेल्स हम फिल करेंगे, रेफरेंस नंबर डालते ही साथ, और इशू कौन किया है, डेट डालने पे हमको यहाँ डिजी लॉकर से फैच हो जाएगा और ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में सबमिट करेंगे अपन। सबमिट किया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से डिटेल्स हम एक एक में व्यू बेसिक प्रोफाइल देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, एकेडमिक डिटेल्स देख सकते हैं, बैंक डिटेल्स, अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो भी हमने सबमिट किया हुआ है। यहाँ पर से हम करंट स्टेटस देख सकते हैं, स्टेटस स्कॉलरशिप का ट्रैकिंग कर सकते हैं, कब क्या रिजेक्ट हुआ है, कब कहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब हम देखते हैं सैक ब्यूरो। फॉर्म फिलअप होने के बाद में ये सारा डिटेल्स जो है वो सैक ब्यूरो को ट्रांसफ़र होती है, तो हम सैक ब्यूरो यूज़र के थ्रू एंटर करेंगे। सैक ब्यूरो में हम लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड के थ्रू। ये सैक ब्यूरो का डैशबोर्ड है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमको आईडी दिखेगा, स्टूडेंट नेम, स्टेटस, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म। व्यू डिटेल्स करेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं एक बार। अगर वेरीफाई डिटेल्स सही है तो वेरीफाई करेंगे हम, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट के लिए हमको रीज़न डालना होगा। रीज़न डालेंगे तो स्टूडेंट को नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है दिस रीज़न के कारण। ओके, अगर वेरीफाई कर दिया हमने तो हम फॉरवर्ड टू फाइनेंस कर देंगे फॉर पेमेंट डिसबर्समेंट। आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम रहेगा। यहाँ से नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स का, यूज़र मैनेजमेंट है, फीडबैक एंड सपोर्ट है, सेटिंग है, सिक्योरिटी कंप्लायंस है। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का डेटा फॉरवर्ड टू फाइनेंस हो गया, उसके बाद हम फाइनेंस यूज़र के थ्रू देखेंगे। फाइनेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग हम वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमको ये शो होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड, जिसमें फंड एलोकेटेड, टोटल डिसबर्स पेमेंट, पेंडिंग डिसबर्समेंट्स, टोटल बेनिफिशियरीज, डिसबर्समेंट ट्रैकर है, जो कि हम कॉलेज वाइज अपन देख सकते हैं कि कितना पेमेंट हमने डिसबर्स किया है, कितना पेमेंट बचा हुआ है, और पेंडिंग और कंप्लीटेड स्टेटस देख सकते हैं। पेमेंट स्केड्यूल का ऑप्शन है, जिससे हम पेमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट्स को हमको हर महीने पेमेंट ट्रांसफ़र करना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक डेट फिक्स करके पेमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बजट एलोकेशन, गवर्नमेंट के थ्रू कितना बजट हमको एलोकेट हुआ है, स्टूडेंट डिसबर्समेंट डिटेल्स, ग्रीवेंस रिसोल्यूशन, नोटिफिकेशंस, ऑडिट एंड कंप्लायंस का ऑप्शन है, फाइनेंशियल हेल्प डेस्क का है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में हम देखते हैं तो स्टूडेंट आईडी को हम पुट करेंगे, पेमेंट की जितना डालना है, पेमेंट किस चीज़ का है, ट्यूशन फी है या मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस हम अलाउ करेंगे, और बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर यूपीआई तो बैंक ट्रांसफ़र। प्रोसेस जैसे ही पेमेंट करेंगे तो राइट साइड में हमको यहाँ पर शो हो जाएगा कि पेमेंट कंप्लीट हो गया है, और पेमेंट किसी वजह से टेक्निकल इशू के कारण पेमेंट पेंडिंग में हो गया। हम जैसे वापस से ट्राई करते हैं, स्टूडेंट आईडी, पेमेंट, मेंटेनेंस, सिलेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, प्रोसेस पेमेंट, तो हमको दिखा रहा है पेमेंट सक्सेस। तो ये यहाँ से हम सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में ये डिटेल्स जो भी है यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स सैक ब्यूरो को भी ट्रांसफ़र हो गई। तो ये था हमारे वेबसाइट का ओवरव्यू, जो कि स्टूडेंट से लेके सैक ब्यूरो एंड फाइनेंस को वर्कफ्लो हमको शो करती है, जो कि स्टूडेंट अप्लाई करेगा, अप्लाई करने से लेकर स्टूडेंट को पेमेंट डिसबर्समेंट तक है, ये हमारा प्रोसेस था। थैंक यू।